Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi, subject Principles of Management in your first year BBA in your semester 1. Today we are learning the another concept, that is decision making. Now, what is meant by decision making? First of all, we will understand that, then we will move to the definition, and then we will understand what is the process of decision making. Now, decision making is considered to be a most important component of the management. Decision making is a basic responsibility of every manager because no managerial activity or a function can be performed without decision making. The management executives take a number of decisions every day. Decision like before business is undertaken, decision regarding the production, financial decision, even decision about the personal and decision about the sales and distribution. So decision have been taken by the management executive at number of decision every day. Now, managers see this decision making as a central job because he need to select what is to be done, who he is to do, when to do, where to do, and how to do. Decision manager को लेना पड़ता है because he need is a central job. उसकी वो central job होती है because he need to continue select कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करोगे. तो ये सारी चीज what is to be done, who is to do, when to do, where to do, and how to do. So decision making क्या होता है? Is a process where you need to arrive at a decision, a process by which individual or organization select one position or a one action from available alternative. The decision making is nothing but a process to arrive at a decision, the process by which individual or organization will select the one alternatives from many others alternatives. Now, the definition as per the Kunz and O'Donnell, decision making is nothing but we need to select the best course of action. We need to select the actual selection from among the alternative course of action, which is considered to be a core of planning. जियो तरीके के हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ सिलेक्शन विच इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव. जो आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपने सिलेक्ट किया होगा फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. दैट इज योर डिसीजन मेकिंग. तो सिंपल वे हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है. इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस जहाँ पे आप एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है. फ्रॉम among the alternatives you select the one alternatives. जैसे for achieving your BBA course बहुत सारे कॉलेज से आपके पास 7 कॉलेज थे, उसमें से आपने एक कॉलेज सिलेक्ट किया, तो दैट इज नथिंग बट अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्या आउट ऑफ मेनी कॉलेज यू सिलेक्ट रॉफल कॉलेज, तो यू हैव मेड अ डिसीजन. फ्रॉम मेनी अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कॉलेज यू सिलेक्ट रॉफल BBA कॉलेज, दैट इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दैट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. Now we will proceed with decision making process where we need to understand its steps of decision making. The first step is specific objective. The need for decision making arise in order to achieve certain objective. Decision making का need जो है वो क्यों arise होता है? Because हमें हमारा specific objective जो हमने set किया है वो achieve करना होगा. जैसे आपका objective set हो गया, देखिए, then you need to decide कि कैसे वे में, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए बिफोर आप अपना ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो. तो जैसे आप डिसीजन लेने वाले हो, क्यों? बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए. सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. वी नो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इज अ real beginning of decision making. Here you will identify and you will clear about the योर प्रॉब्लम्स. वी नो दैट प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होगा? जहाँ पे डिफरेंस होगा. कौन से के बीच में डिफरेंस होगा? बिटवीन योर प्रेजेंट एंड डिजायर. प्रेजेंट मतलब व्हाट इज एंड डिजायर मतलब व्हाट शुड बी. वो दोनों में डिफरेंस हुआ तब डिसीजन प्रॉब्लम अराइज हुआ. तो उस टाइम आपको डिसीजन लेना जरूरी होता है. तो मैनेजर को यहाँ पे क्या ड्यूटी है कि ही नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज, इसका कॉजेज क्या है. ही नीड टू बी आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली कि उसका प्रॉब्लम्स को उसको डायग्नोस करना होगा और उस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होगा. अभी जैसे कि डॉक्टर डायग्नोस करता है डिजीज ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना उसको रियल डिजीज कौन सी है. तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर इज एक्टिंग एज अ डॉक्टर वेयर ही डायग्नोस द प्रॉब्लम्स ऑफ द achieving the objectives. Next one is your
search for alternative. ठीक है, you will after identify the problems, you will find the alternative to solve that problem. ठीक है, after thorough diagnosis define both specific problem and the situation in which problem exist. जैसे प्रॉब्लम को डायग्नोस किया तो आप डिफाइन कर सकते हो ना कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है और कौन सी सिचुएशन में वो प्रॉब्लम एग्जिट हुआ. तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मेनी वेज. सो इफ ओनली देयर इज ओनली वन वे इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम तो क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं डिसीजन का. तो डिसीजन मेकर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव व्हिच इज अवेलेबल in order to get a satisfactory result of a decision. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे. ठीक है, वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपको सर्च करना पड़ेगा जिससे आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हो. नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. जो आपके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसको आप इवोल्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. उस ऑल्टरनेटिव्स को आप सिलेक्ट करोगे जो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है और कम कॉस्ट में वो ऑल्टरनेटिव जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं. आप ये भी देखोगे रिस्क कितना है. ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, इकोनॉमिक ऑफ एफर्ट्स कितना है, कॉस्ट टाइम एफर्ट्स कितना इन्वॉल्व है उस ऑल्टरनेटिव में, टाइमिंग एंड सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम अर्जेंट है तो उस हिसाब से आप ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे. लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन से फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है. इफ यू हैव सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव तो आपको ईच ऑल्टरनेटिव बोथ आपको इवोल्यूट करना होगा, वेदर वो इंटेंजिबल नेचर का होगा कि टेंजिबल फैक्टर के होंगे. बट यहाँ पे आपको while evaluating each alternative you need to consider your tangible and intangible factors. tangible factor में क्या प्रॉफिट अर्न करोगे, intangible में क्या होगा कि आप अपनी गुडविल बढ़ाओगे. तो ये दोनों चीज को अचीव करने के लिए आप ऑल्टरनेटिव को इवोल्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, in terms of situation, in terms of limitation of resources. After the evaluation of alternative, you will select the one alternative. So, decision maker need to select the best alternative after careful evaluation. The alternative which give a maximum benefit to organization is selected. ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है वो आप सिलेक्ट करोगे. तो यहाँ पे जो आपने सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया होगा वो आपको ये देखना होगा कि वेदर वो फिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो भी आपको यहाँ पे देखना होगा. एंड देन यू विल टेक एक्शंस. जैसे ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हुआ आप उस ऑल्टरनेटिव को अपने एक्शन में पुट ऑन करोगे. ऑल्टरनेटिव जब सिलेक्ट कर रहे हो मैनेजर की प्रायोरिटी होती है कि वो ऑल्टरनेटिव को आप कन्वर्ट करो डिसीजन में जहाँ पे आप ऑपरेट करो. वेदर वो मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि जो ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट किया वो ऑपरेशन इफेक्टिवली हो रहा है कहीं नहीं. तो यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेटिव को आप एक्शन में इंप्लीमेंट करोगे. एंड देन यू विल कंपेयर द रिजल्ट कि वेदर जो डिसीजन आपने लिया है इट ब्रिंग सर्टेन रिजल्ट इंडिकेट कि वेदर डिसीजन मेकिंग जो आपने किया है वो प्रॉपर है कि नहीं. तो यहाँ पे मैनेजर शुड टेक अप फॉलो अप एक्शन इन द लाइट ऑफ फीडबैक रिसीव फ्रॉम द रिजल्ट. यहाँ पे डेविएशन जो हो रहा है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट उसको प्रॉपर के एनालाइज करोगे. फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेविएशन के लिए वो भी आप आइडेंटिफाई करोगे. तो दैट इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर यू नीड टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव, वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, where you need to search for the alternatives to cure that problem. ठीक है, you need to evaluate your alternative in terms of risks, in terms of your cost, in terms of benefit, in terms of your रिसोर्सेज. ये सभी के बेस में आप ऑल्टरनेटिव को इवोल्यूट करोगे. देन यू विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन. यू विल पुट दैट ऑल्टरनेटिव इन योर एक्शंस एंड देन यू विल हैव योर फाइनल रिजल्ट. That will be, you will compare the result. That will be your decision making process. So decision making process क्या होता है कि from you need to decision making process क्या हुआ कि हमने एक ऑल्टरनेटिव की सिलेक्ट किया. A1, A2 एंड A3 है तो मैंने A1 को सिलेक्ट किया. दैट इज माई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. उसमें से एक आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया just to diagnose your problem
उस ऑल्टरनेटिव जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जो आपका डिसीजन इन्वॉल्व है, दैट विल बी योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जस्ट गो थ्रू द वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग.